kids, how are you? I hope you are stay at home. मुझे आशा है कि आपने प्रीवियस वीडियो से अच्छे से लर्न कर लिया होगा और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली होगी। आज हम कंटिन्यू करेंगे विथ आवर टॉपिक नाउन। सो लेट्स बिगिन। In previous video, we have learned the definition of nouns and 5 types of noun. Today, I will teach you other 4 kinds of noun. First one is countable noun and uncountable noun. Second one is singular noun, plural noun. Third one is gender noun and fourth one is agent noun. First of all, we will start with the countable noun and uncountable noun. Uncountable noun and countable noun क्या है? जिस चीज़ को आप गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन होगा और जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। हमारे पास कितनी सारी चीज़ है जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर, लाइक टीवी, बाइक, स्पून, प्लेट, विंडो. वी कैन काउंट विथ नंबर विथ 1 TV, 4 spoons, 6 plates, though they are all countable nouns. How we can identify whether it is countable noun or not? For that, there are 3 rules. We can identify the plural form of nouns if we say, I have a bottle of milk. She has 3 dogs. This shoes looks old now. Here, a dog, shoes, a bottle of milk can be countable, so it is become countable noun. Move on further. If there is an article a and the used in sentences, which means the things is countable. If I say, I want to eat an orange. A dog is an animal. I need a laptop. यहाँ पे a dog, an animal, a laptop. The woman who stand next to you is my sister. So यहाँ पे the woman है, a dog है, an animal है, an orange है, ये सब countable noun है. Next, third rule is when many, a few, a large number is used before noun in sentence, there will be countable noun. The word many means what? A lot of. We use many with plural noun. For example, does she want many dresses? How many cars in the showroom? I don't have many friends. I don't have many things to do. इन सब में many countable noun के साथ यूज हुआ है. That means we can count that noun. Next, a few. A few means some. We use them to mean not as much as may be expected or wished for. जितना हमें चाहिए उतना हम expect नहीं कर रहे हैं तब हम a few यूज करेंगे. If I say we stayed a few days in Mumbai and visited some places, she has won a few awards. Don't take all the strawberries, just have a few. सारी strawberries मत ले लो, थोड़ी ले लो. There is an amount of strawberries we can count. Next is a large number of. There were a large number of candidates for the job. Job fair था, वहाँ पे बहुत सारे candidates आए थे, so एक candidate को हम count कर सकते हैं. यहाँ पे numbers ज़्यादा है. Other example, they choose us from a large number of students. If you are selected for a competition, जहाँ आप पूरे स्कूल में से एक ही चूज किए गए हो तो वो countable noun होगा. A single virus can infect a large number of people. Nowadays हम देख रहे हैं we have suffered from coronavirus. तो कोरोना वायरस है, एक ही वायरस large number of people को infect कर रहा है. Let's take a look for a countable nouns examples. Orange, cucumber, potatoes, brinjals, onion, trees, etc. Now, what is uncountable noun? Uncountable noun क्या है? What we cannot count. It is simple. They may be the name for abstract idea or qualities or for physical objects that are too small to be counted. ऐसी कोई चीज़ वो इतनी स्मॉल है, इतनी छोटी है कि हम गिन नहीं सकते, तब हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे. जस्ट लाइक लिक्विड्स, पाउडर्स, गैसेस, राइस, शुगर, टी, वाटर, चीज़, कॉफ़ी, नॉलेज, एंगर एक्सेट्रा. अगर हम काउंटेबल में बुक्स लेते हैं तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, बट बुक में जो नॉलेज है उसे हम काउंट कर सकते हैं नहीं,
क्यों? आपको कितना नॉलेज मिला आप काउंट कर सकते हो? नहीं. सो बुक विल बी काउंटेबल एंड नॉलेज विल बी अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन में जैसे 3 रूल्स थे, यहाँ पे भी 3 रूल्स है. फर्स्ट वन, डोंट हैव प्लूरल फॉर्म. यहाँ पे प्लूरल फॉर्म नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, हैप्पीनेस, बटर, ये सब सिंगुलर ही रहेंगे. सेकेंड वन, आइडेंटिफाई विथ डेफिनेट आर्टिकल द. इफ there is use of the before noun, that will be uncountable noun. The water is cold. The coffee is very tasty. In uncountable noun, we use many, a few, and a large number of. Here we will use much, little, and a large amount of. Much क्या होता है? Much is used with uncountable noun. It is mainly used in negative and interrogative clauses. For example, How much money have you got? आपको कितने पैसे मिले? I'm sorry, but I don't have much time. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. यहाँ पे money and time are uncountable. money को भी हम काउंट नहीं कर सकते. यहाँ पे ध्यान रखना, मनी है वो अनकाउंटेबल है. हम बोलते हैं कि मनी को तो हम काउंट करते हैं, बट वो मनी नहीं है, वो पैसे है, रुपीस है. मनी है वो अनकाउंटेबल है. हम रुपीस काउंट करते हैं, 1 पैसा, 2 पैसा, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़. ये वो है, वो रुपीज़ काउंट कर सकते हैं, मनी काउंट नहीं कर सकते. वेर अ लिटिल मीन्स नॉट मच और लेस देन सम और मोर देन नन. लिटिल कब यूज होता है? थोड़ी सी मात्रा हो. पॉजिटिव वे वी कैन से आई हैव अ लिटिल मिल्क. यू कैन यूज, मेरे पास थोड़ा सा मिल्क है, आप यूज कर सकते हो. आई गोट अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े मनी हैं. If we say we have little time, so let's start working. यहाँ पे हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है, सो हम काम स्टार्ट कर सकते हैं. Where he put a little sugar in his coffee. उसने नहीं के बराबर जरा सी शुगर है वो कॉफ़ी में डाली, तो वो नहीं के बराबर है. नेक्स्ट वन इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ. When we use large amount of, the government waste a large amount of water. जब बारिश होती है, बारिश के बाद बहुत सारा पानी डैम में आता है, बट गवर्नमेंट उसे यूज़ नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलते हैं? द गवर्नमेंट वेस्टेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. नेक्स्ट वन, द थीव्स स्टोल अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश एंड ज्वेलरी वर्थ 1 करोड़. थीव चोर ने क्या चोरी किया? 1 करोड़ की ज्वेलरी एंड money. Up next one is both countable and uncountable noun. some है, a lot of है, any है, वो countable noun में भी यूज होता है और uncountable noun में भी यूज होता है. some का यूज देख ले. let's go somewhere, let's go have some fun. चलो कहीं पे जाते हैं और फन करते हैं. I put some jam in the sandwich. अगर हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? Would you like some tea or coffee? कहते हैं ना. अब a lot of. A lot of means what? If I say there are a lot of cookie. They have got a lot of CDs. There are lot of थिंग्स ऑन योर टेबल. तो यहाँ पे थिंग्स है वो काउंट कर सकते हैं, कुकीज़ है वो काउंट कर सकते हैं, बराबर. देयर आई हैव लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, फ्री ही हूँ मैं, तो वो टाइम है वो काउंट नहीं कर सकते. सो काउंटेबल नाउन में भी यूज़ होता है और अनकाउंटेबल नाउन में भी यूज़ होता है. नेक्स्ट इज एनी. एनी कब आता है? क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंस में. इफ आई से आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरे पास कोई फ्रेंड ही नहीं है. अगर आप बेकरी में जाओ और आप दुकानदार आपको बोले देयर इजंट एनी ब्रेड लेफ्ट, अब कोई ब्रेड बची ही नहीं है. अगर आप क्वेश्चन में ही यूज़ करते हो एनी, सो डू यू हैव एनी मनी, आपके पास कुछ पैसे है. इज देयर एनी शुगर, ये सब काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन में भी यूज़ होता है. लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल्स है, आप देख लेना कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स है. Let's move on further to the singular and plural noun. Singular noun and plural noun क्या है? Singular noun कब हम यूज़ करते हैं? जब हम एक पर्सन की बात करें, एक थिंग की बात करें, एक प्लेस की बात करें.
और प्लूरल नाउन क्या होता है, जब हम एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात करें, एक से ज़्यादा प्लेस की बात करें, एक से ज़्यादा थिंग की बात करें, तब हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ हॉर्स, अ प्लांट, ड्रीम, हेट, गुड, दैट ऑल आर सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन में प्लेसेस लाइक स्टेट, कंट्री, विलेज, हिल, पार्क, ये सब सिंगुलर नाउन है. दैट गर्ल इज़ माई गुड फ्रेंड, गर्ल है वो सिंगुलर है. माई मदर इज़ वेरी स्वीट एंड केयरिंग, यहाँ पे मेरी माँ की बात की गई, वो सिंगुलर है. आई हेट लेजी पीपल, यहाँ पे हेट है वो सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज़ किया गया है. अब देखते हैं प्लूरल नाउन. व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, थिंग एंड प्लेस और आइडियाज, दैट कैन बी प्लूरल नाउन. Plural noun can be made by adding suffix like s, es or ies or ves. Cup, cases, rivers, pencils, boxes, watches, dice, feet, these, those, etc. ये सब प्लूरल नाउन है. अब यहाँ पे सर्टेन रूल्स है जिसे हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में बदलेंगे. देख लेते हैं, जो आप 5th में भी पढ़े होंगे, यहाँ पे रिवीजन करना है. सिंगुलर नाउन में हम सिंपली एस ऐड करें तो वो प्लूरल बनेगा. काउ, काउज. सेकेंड वन है, अगर नाउन एस, एस एच, सी एच, एक्स, एस एस यहाँ से एंड होता है तो हम उसके पीछे ई एस लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल क्लास, डबल एस आया, क्लासेस. बश, बशिश. बेंच, बेंचेस. टैक्स, टैक्सेस. और अगर नाउन के पीछे ओ आता है तो हम ई एस लगाएंगे. बफेलो, बफेलोज. पर अगर नाउन छोटा है, स्मॉल नाउन है, शॉर्ट वर्ड है और फिर भी वो ए ओ से एंड होता है तो हम एस लगाएंगे. फोटो, यहाँ पे ओ आया बट वर्ड कैसा है, छोटा है, सो हम सिंपली एस ऐड करेंगे. फोटो, फोटोज. 5th रूल, फॉर नाउन्स एंडिंग विथ वाई, अगर नाउन में वाई से एंड होता है तब हम वाई का आई कर देंगे और बाद पे ई एस लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल पोनी, PONY, वाई आया, वाई को हटा दिया और IES, आई ऐड किया और बाद में ES लगाया. लेडी, लेडीज, वाई को हटा के IES किया. When वाई कम आफ्टर वोवेल, वोवेल के बाद में वाई आए तो अब हम S यूज करेंगे. टॉय, TOY, वाई के पहले क्या आता है, वोवेल, तो S यूज करना है, टॉयज. 7th, जैसा हमने वाई में किया वैसे ही हमें F और FE में करना है. अगर नाउन F और FE से एंड होता है तब हम F और FE की जगह V यूज करेंगे. V को लगाएंगे और बाद में ES करेंगे. Y में हम क्या करते थे, Y को हटा के I लगाते थे. F यहाँ F आएगा तो F और FE को हटा के V लगाएंगे. नाइफ, knives. Shelf, shelves. For some noun ending with F or FE, simply add S. कुछ नाउन में सिंपली S ही ऐड होता है. चिफ, चिप्स. कुछ नाउन में इनसाइड के वोवेल वो चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल माउस, माइस. नेक्स्ट इज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म विल बी सेम. शिप, शिप, यहाँ पे सिंगुलर भी शिप है और प्लूरल भी शिप है. सम नाउन do not follow the rules, there are irregular form. Child, children, यहाँ पे हम childrens भी बोलते हैं तो childrens नहीं बोलना है. Child is a plural, sorry, child is singular and children is a plural. Some nouns are used only in singular. Physics है वो singular के ही use होता है and some are used for only for plural. Jeans, तो jeans एक ही हो या दो हो तो वो jeans ही बोलते हैं. Other irregular nouns like men, women, mice, octopus का क्या होगा प्लूरल, octopi. Leaf, leaves, ship, ship, etc. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपको. इन सेंटेंसेस में सिंगुलर
और प्लूरल नाउन को आइडेंटिफाई करना है। मैं क्वेश्चन सेंटेंसेस रीड कर रही हूँ। आई ईट 2 बॉइल्ड पोटैटोज इन द ब्रेकफास्ट डेली। आप आइडेंटिफाई करो इस सेंटेंस में से प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है। आई सो डॉग्स वेर रनिंग बिहाइंड द कैट। दिस चेयर हैज बीन वेरी ओल्ड एंड नीड टू बी रिपेयर्ड। फ्लाइंग बर्ड्स in the sky are looking very attractive. Flying bird in the sky are looking very attractive. India is surrounded by the ocean on its 3 sides. There are 7 men or 2 women live on footpath. There is boy weeping very loudly. Only few buses went to Ahmedabad to बड़ौदा। यहाँ पे आपने देख लिया कौन कौन से काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे आपने देख लिया कौन कौन से प्लूरल है और कौन कौन से सिंगुलर है। सो हियर इट इज द आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में पोटैटोज है वो प्लूरल है, सेकंड में डॉग्स है वो प्लूरल है, कैट सिंगुलर है, थर्ड में चेयर है वो सिंगुलर है, फोर्थ में बर्ड है वो सिंगुलर है, फिफ्थ में इंडिया सिंगुलर, सिक्स्थ में मैन एंड वीमेन प्लूरल, सेवेंथ में बॉय सिंगुलर, एट्थ में बसेस प्लूरल, अहमदाबाद एंड बड़ौदा है वो भी सिंगुलर है। लेट्स मूव ऑन टू द जेंडर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, masculine, feminine, common gender and neuter gender. We will start with the masculine gender. What is masculine gender? A gender that refers chiefly to male or to object classified as male. यहाँ पे poet, princess, shepherd, bull calf, milkman, uncle ये सब masculine gender के examples हैं। Feminine gender. What is feminine gender? A gender refers chiefly to females or to object classified as female. For example, aunt, cow, daughter, princess, cow calf, milkmaid, etc. Next is common gender. Common gender masculine और feminine दोनों के लिए यूज होता है। For example, babies, singers, dancer, teacher, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, लॉयर ये सब मस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनाइन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स व्हाट? न्यूटर जेंडर रिफर्स टू इनएमिनेट nouns which means non-living things. For example, phone, fire, stick, hospital, schools. We can add calf, a boy calf for baby buffalo, cub, a baby of bear, larva, a baby of bee, foal, a baby of horse. That all are examples of neuter gender. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मस्कुलाइन में ब्रदर, हीरो, टाइगर, पोएट, ड्रोन, बुल। फेमिनाइन में लायंस। फेमिनाइन में गर्ल, क्वीन, एक्ट्रेस, सिस्टर। कॉमन में बेबी, चाइल्ड, प्यूपिल, नेबर, फ्रेंड। न्यूटर जेंडर में रोज, साइकिल, बुक, फैन, एक्सेट्रा। Sentences. Rewrite the sentences with the opposite gender of noun. यहाँ पे sentences है, उसमें changes करना है। My grandmother has a pair of she goat. यहाँ पे grandmother है वो feminine gender है, she goat है वो भी feminine gender है, तो हम feminine gender को masculine gender में convert करते हैं। My grandfather has a pair of he goat. Second, the man sells टॉयज एट द फेयर। मैन का हम वुमन करेंगे, तो वुमन सेल्स टॉय एट द फेयर। थर्ड वन, दैट लिटिल बॉय इज सो क्यूट। बॉय का गर्ल करेंगे फेमिनाइन, दैट लिटिल गर्ल इज सो क्यूट। लास्ट एंड द नेक्स्ट वन इज एजेंट नाउन. What is agent noun? Agent noun is a person who perform an action
That is because the agent noun is a doer of an action. Agent generally have the ending with er or or. That suffix added to root word. For example, teacher. टीचर है वो एजेंट है, तो उसका रूट वर्ड क्या है? टीच, TEACH. तो टीचर में हमने ER ऐड किया, तो वो रूट फॉर्म है. डायरेक्ट, डायरेक्ट है वो रूट फॉर्म है, तो उसका एजेंट है डायरेक्टर, DIRECTOR, डायरेक्टर. As I mentioned further, the agent nouns is the person who complete the action. For example, someone who employs, that is employer. Someone who prosecute, that is prosecutor. For example, one who drives a vehicle, that is driver. कौन vehicle चलाता है? Driver. One who studies, student. आप study करते हैं तो student है. One who writes or study history, he is or she is historian. Let's sum up what we have learned today. First, हमने सीखा countable noun. The noun can be counted. For example, rupees, glass, car, fan. Second, uncountable noun. The noun cannot be counted. Money, water, time, कॉटन, ये सब हम काउंट नहीं कर सकते हैं. बाद में हमने सीखा सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन क्या है? ओनली फॉर वन पर्सन और थिंग. माउस, नोज. प्लूरल थिंग क्या है? मोर देन वन पर्सन और थिंग. माइस, टॉयज. जेंडर, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर हमने सीखा. मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल. लास्ट वन इज एजेंट. Name for persons, professions, activities, certain jobs. Thank you so much. Have a nice day. So today we have finished the topic noun. अब आपको क्या करना है? आज भी आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी, उसको आपको सोल्व करना है. After that you have to revise both the video and revise the exercise. Thank you so much.